Welcome back. Let's start today with a new chapter of SS, and it's going to be once again a very interesting chapter. And of course, there'll be few animated videos at the end, which will make the chapter more interesting and more easy. I think so for you. So let's start. Now, this chapter is related to economics. Now, we already had done maybe in the in first sem, we had done a chapter related to economics. तो पूरे एस एस के सेम वन में few chapters were on history, few on geography, one or two was on civics, and accordingly there was a one or two on economics. Similarly, in this sem 2 also we have few economics chapter. Now, economics usually is related to the development that a country makes, the development of human being, and is related to the money matters. That is, I would say, overall development of the country, like the infrastructure and the literacy level and the poverty that we see that which by our government effort is decreasing, employment is increasing. So there are many factors that are connected to economics. Here we are going to observe the journey of a rupee. So, of course, it's going to be very, very, very interesting journey, of course, not only of a rupee, but our journey with this particular chapter will be very interesting. So, let's start. Now, here you can very clearly see how a person like एक sweet shop पे जा रहा है and he gives money and he buys a product, and accordingly a lady is coming over here and buying something from this another lady, some maybe vegetables or fruits or something, but she gives the money and buys a product. Similarly, you or your friend or a school child going, or anyone going towards a stationery store, buying the material like pen, pencil or eraser or compass or books or whatsoever stationery, provide giving the money and buying the product. Now there's a big market here, राइट, जहाँ पे बहुत सारी चीजें डायरेक्ट फार्म से यहाँ पे आ रही है, राइट, फिर यहाँ से जा रही है रिटेलर्स को. देन दिस इज द फार्म ओवर योर, अगेन दिस पीपल दे आर कैरिंग आउट देयर फार्मिंग वर्क. तो हम स्टार्ट करते हैं ऐसे, कुछ उल्टा जा रहे हैं तो कुछ ऐसे स्टार्ट करते हैं. चलो, तो फर्स्ट बैंक, द पर्सन द फार्मर टेक्स लोन फ्रॉम द बैंक. We will do it that way. The story how it revolves around the rupee. ये rupee है, it's not only one rupee, it means money over here in simple words. तो बैंक में say you as a farmer, you are going and you are taking the loan. फिर तुम और तुम्हारी फैमिली यहाँ पे फार्मिंग कैरी आउट कर रहे हैं. With that money you bought some nice good quality fertilizer and seeds and not many other things. गुड ग्रोथ होने के बाद उसी को तुम ट्रांसपोर्टेशन थ्रू लेके जा रहे हो. फिर वो ट्रैक्टर या ट्रक या टेम्पो में जो चीज तुम लेके आते हो अपने फार्म से ट्रांसपोर्टेशन करवा के तुम फिर आओगे यहाँ पे मार्केटिंग यार्ड में, होलसेल में दे रहे हो. यहाँ से तुम्हें फिर पैसे मिलेंगे, थोड़ा बहुत तुम खरीदी करोगे ऑन द वे, और घर के दूसरे लोग भी उसी पैसे से कुछ खरीदी कर रहे हो, दूसरों को कमाई करवा रहे हैं. Finally, the children of that family goes and buy some stationery. और फिर हम बचत भी करते हैं ऑफ कोर्स, तो हम सेविंग कर रहे हैं यहाँ पे, कमिंग बैक टू द बैंक, राइट. सो लेट्स मूव अहेड. नाउ, इज एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी डन बाय योर मदर और फादर? ऑफ कोर्स, जैसे कई बच्चों के पेरेंट्स, उनके चलो मम्मियों के ब्यूटी पार्लर्स हैं, किसी की मम्मी टीचर है, किसी की मम्मी हाउसवाइफ है, तो पापा बाहर जा रहे हैं कमाने, किसी के मम्मी पापा दोनों कमा रहे हैं, किसी के सिर्फ पापा कमा रहे हैं. तो दिस इज हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी विच वी हैड डन इन वेरी शॉर्ट. एक छोटा सा एक पार्ट आया था इन द फर्स्ट सेम, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स व्हाट? सो लेट्स सी. Now say that your mother, she has her own beauty parlor, और वो अपने घर के फैमिली मेंबर के से अपनी मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ या
एनीवन, मदर या बहन या किसी की आईब्रो कर दे, या हेयर कटिंग करके दे दे, या शादी है घर में और वो मेकअप करके दे दे, तैयारी करवाए उनके पास, तो शी विल नॉट चार्ज मनी ऑफ कोर्स, बिकॉज शी इज डूइंग इट फॉर अ ओन फैमिली, फॉर अ ओन मे बी डॉटर और सिस्टर और मदर इन लॉ, तो उनसे वो पैसे नहीं लेंगे. सो इट बिकम्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट द सेम एक्ट इफ द मदर कैरीज आउट, जब कोई ये काम करवाना आते हैं, कोई नेबर्स या कहीं से लोग आते हैं नाम सुनते हुए पार्लर की सर्विस लेने, ब्यूटी पार्लर की सर्विस लेने, तो दे योर मदर विल नॉट से ओह यहाँ पे तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है. नो, शी विल चार्ज फ्रॉम देम ऑफ कोर्स. दैट बिकम्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? What are the various uses of income in your house? Write about it. तो इनकम किस किस चीज में यूज करते हैं, तो जैसे हमने पहले यहाँ पे भी देखा, यहीं पे कि हम कहाँ कहाँ पे खर्च कर रहे हैं. तो चलो अब हम हमारी बात करेंगे कि कहाँ पे खर्च कर रहे हैं. तो जैसे ही पापा या मम्मी कमाते हैं, या दोनों कमा रहे हैं, या सिर्फ पापा कमा रहे हैं, तो वी विल सी दैट उस पैसे से तुम्हारी स्कूल की फीस पे करते हैं, राइट? ये एक यूज हुआ पापा या मम्मी या दोनों की सैलरी का या इनकम का. उस पर ट्यूशन फीस दे रहे हो, उसी से तुम स्टेशनरी से चीजें लेके आते हो. उसी अनलिमिटेड अनलिमिटेड यूज होंगे. ये तो सिर्फ तुम्हारी तो अभी शुरुआत हुई है, तुम्हारी गिनती हो रही है. पैसे जो पेरेंट्स कमा रहे हैं उसका तुम पे कहाँ पे यूज हो रहा है, तो उस यूज का बेस्ट यूज करो कि अच्छे से पढ़ाई करो, बिकॉज यू हैव नेवर सीन योर पेरेंट्स डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क टू अर्न दैट मनी एंड देन पे टू स्कूल एंड ट्यूशन टीचर्स एंड ऑल. ये तो सिर्फ दो चीजें हुई. तीसरी तुम स्टेशनरी, फोर्थ तुम्हारे कपड़े, फिर तुम्हारा खाना पीना, फिर तुम्हें घुमाने ले जाना, फिर तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा एसी, तुम्हारा रूम, द लाइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड द वाटर बिल एंड द वेरियस लग्जरीज, द फ्रिज एंड द इलेक्ट्रिसिटी बिल, और गीजर इन द रूम, योर bathroom, and jo tumbler and bucket and soap and toothbrush and toothpaste and oil and comb and my god, unlimited. तुम्हारे खुद के अलग हेयर बैंड एंड टिक टैक पेन्स एंड तुम्हारी फरमाइशें एंड तुम्हारी डाइजेस्ट, या तुम्हारी बुक्स एंड पेन एंड पेंसिल एंड इरेजर एंड कंपास एंड वाटर बॉटल एंड माय गॉड. ये तो सिर्फ शुरुआत की है तुम्हारे ऊपर जो पैसे खर्च हो रहे हैं. इसीलिए हर बार कहती हूँ, डोंट वेस्ट मनी. यू नेवर नो कितनी चीजें तुम पे न्यौछावर कर देते हैं माँ बाप, कितने पैसे वो लोग खर्च कर रहे हैं अपनी मेहनत के तुम पे. एंड व्हेन यू डोंट स्टडी, यस आई वुड से, यू हैव नो राइट टू वेस्ट द मनी दैट यू आर गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें तुमने थोड़ी भी मेहनत नहीं की है. सो आई वुड से इट्स बेटर दैट कि तुम अनपढ़ रहो, पैसे उड़वाने की जगह पे घर में ही बैठे रहो, थोड़े काम में आ जाओगे, ठीक है ना? मम्मी और पापा के पैसे भी बचेंगे, काम वाला निकाल देंगे, वो पैसे बचे क्योंकि उसका काम अब तुम करोगे. सेकंड, तुम्हारी स्कूल ट्यूशन और फालतू का खर्चा, क्योंकि ये सब फालतू खर्चा है, स्कूल के फीस, ट्यूशन फीस, ये सब जो बेकार के खर्चे बेचारे माँ बाप तुम पे कर रहे हैं, वो भी बच जाएंगे. देन दे कैन एंजॉय देयर लाइफ, दे कैन रोम अराउंड द वर्ल्ड. समझ में आ रहा है? सो पे अटेंशन, व्हाट एम आई सेइंग. अब मम्मी पापा घर के लिए जो खर्च कर रहे थे इनकम, जैसे फिर ग्रेनरी ले आना और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, और कुछ ना पेट्रोल, अगर टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, तो पेट्रोल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, घर के मेंटेनेंस, काम वालों को पैसे देना, और वो तो अब एक साल से तुम स्कूल नहीं जा रहे, अदरवाइज तो वैन का खर्चा, या मम्मी अगर टू व्हीलर पे छोड़ना आती है तो वो खर्चा, तुम साइकिल पे जा रहे हो तो साइकिल का खर्चा. इट्स अनलिमिटेड. Based on the above answers, it can be said that people are connected with various economic activities. अब जैसे ही मैंने कमाई की तो मैं क्या करूंगी उस पैसे से, अब मैं उसको खर्च करूंगी. अब मैं तुम्हें कहूंगी चलो मैं तुम्हारे लिए 5 स्टार लेके आती हूँ, तो तुमसे मैं पैसे नहीं लूंगी, बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग, आई एम जस्ट गिविंग इट टू यू शेयर आउट ऑफ लव. बट जिनसे मैं खरीदी कर रही हूँ वहां पे तो मुझे पैसे देने होंगे 5 स्टार के, राइट? तो ये हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब वो 5 स्टार में लेके आई, अब मैं तुम्हें प्यार से दे रही हूँ सबको, तो वो हुई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू पे मी फॉर दैट चॉकलेट्स और कैडबरीज, राइट? द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर बेस्ड मेनली ऑन 3 सेक्टर्स.
let's get familiar about it, means let's get the knowledge about it. अब 3 सेक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर किए जाते हैं. प्राइमरी सेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, सेकेंडरी इक्वली इंटरेस्टिंग, थर्ड तो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, राइट. तो ये 3 सेक्टर के बारे में हम पहले तो स्टार्ट समझ लेते हैं, व्हाट इज इट, देन आई रीड इट. तो फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, so let's start with that. So as we move ahead with the primary sector, let's first of all know what is it. Now certain resources, they are obtained directly from nature and they are used by us. मतलब कई चीजें ऐसी होती है जो डायरेक्टली नेचर से हमें मिल जाती है और डायरेक्टली हम उसको यूज करते हैं. जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एंड सीरियल्स, पल्सेस एटसेट्रा. We obtain wood from forest, medicinal plants, gum, etc. Animals gives us milk, meat, bones, leather. We get fish from water. Similarly, we find minerals beneath the earth's surface, that is below the earth's surface. से minerals मिलते हैं हमें कई सारे जिसे हम यूज करते हैं. In short, forest area, agricultural area, mining area, animal husbandry, fisheries, etc. provide raw material to us for food commodities and industrially manufactured products और goods. तो ये सारी चीजें, इसको हम क्या कहेंगे, ये सारे एरियाज जो हैं, जैसे फॉरेस्ट से हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है लाइक वुड एंड मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स. एग्रीकल्चरल एरिया से हमें काफी चीजें मिल रही है लाइक सीरियल्स, पल्सेस, ग्रेन्स. माइनिंग एरिया से मिनरल मिल रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एटसेट्रा. तो हमें काफी सारी चीजें यहाँ से मिल रही है. ये सारे हैं रॉ मटेरियल, राइट. और फिर हम इसे इंडस्ट्रीज में ले जाके फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट. सॉरी. तो नाउ डायरेक्टली हम गेहूं, चावल लाइक व्हीट, राइस एटसेट्रा हम खा नहीं लेते कि भाई ग्रो किया, काटा, दैट इज हार्वेस्टिंग हो गई, घर पे गेहूं ले आए, खा लिया, दाल खा ली. वी हैव टू प्रोसेस इट. जैसे से मिल्क, तो थोड़ी ना मिल्क पी के हम कहेंगे वाह तो मैंने श्रीखंड खाया, आज मैंने कैडबरी खाई, आज मैंने कुछ पनीर खा लिया, चीज खाया. नो, यू हैव टू प्रोसेस. वो मिल्क में से बनती है वो चीजें, मतलब तब तक वो मिल्क या यू कैन से minerals that we get from below the earth surface, that all this thing directly हम थोड़ी मिनरल यूज करेंगे. हाँ चलो मैंने घर बना लिया, आयन यूज हो गया, लकड़ा लिया है फॉरेस्ट से, कहा ओ फर्नीचर बन गया और बैठ गए लकड़े के टुकड़े पे. नो, इट्स नॉट दैट. वी हैव टू प्रोसेस इट. तो उसके लिए हम उसको फैक्ट्री तक ले आते हैं. तो ये सारी चीजें क्या होती है जो ग्रो हो रही है, जिससे अब तक हम डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं, दैट इज रॉ मटेरियल. तो वो हुआ प्राइमरी सेक्टर जहाँ पे ये चीजें ग्रो हो रही है. फिर उसे हम ले जाएंगे फैक्ट्री में और उसको हम बनाएंगे फिनिश्ड प्रोडक्ट. तो फैक्ट्री का एरिया हो गया सेकेंडरी सेक्टर, राइट. सो दिस फर्स्ट हम प्राइमरी सेक्टर कंप्लीट करते हैं. सो दिस सेक्टर इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर वेयर वी गेट द रॉ मटेरियल. और प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहाँ पे चीजें बनती है, फिनिश्ड प्रोडक्ट बन रहा है रॉ मटेरियल से. जैसे शुगर केन फार्मर ने ग्रो किया, प्राइमरी सेक्टर. अब शुगर केन थोड़ी ना वो डंडा तुम या तुम्हारी मम्मी दूध या चाय में हिला के कहेंगे वाओ हमने शुगर डाल दी, या डायरेक्टली शुगर केन को ही खा लिया. उसके जूस को निकाल के फैक्ट्रीज में शुगर बनते हैं, गुड़ बनता है, खांड सरी बनती है. तो इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर, जहाँ पे ये क्रिस्टल्स बनते हैं शुगर के, जहाँ पे गुड़ बन रहा है, खांड सरी बन रही है, राइट. लेकिन शुगर केन जहाँ पे ग्रो हुआ, रॉ मटेरियल है वो हुआ प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर. Certain primary products are such which undergo certain processes to be in the form of finished product. Thus they are used in this form. कई प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिसे हमें डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते, तो उसको हम प्रोसेसिंग में डालते हैं, फैक्ट्री तक ले जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तक ले जाते हैं और फिर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं. Such an activity is called the activity of secondary sector. Like cotton. अब रुई थोड़ी ना पूरे शरीर पे डाल दे के बोलेंगे चलो मैंने ड्रेस पहन लिया.
रुई में से मतलब कॉटन बॉल जो ग्रो होते हैं प्लांट पे, तो कॉटन बॉल में से धागे बनते हैं, और फिर दैट इज थ्रेड, देन यू प्रिपेयर क्लॉथ, और फिर क्लॉथ में से यू वीव अ क्लॉथ मशीन या हैंड से, फिर उसमें से अलग अलग ड्रेसेस बनाते हैं. सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. सो like cotton cloth from cotton seed oil, jaggery, gur that is sugar from sugarcane, bricks from soil, फिर हम ईंट बनाते हैं मिट्टी से. तो ऑल दिस थिंग्स जब बन जाता है तो उस जगह को जहां पे हम बनाते हैं तो वो सेक्टर हो गया सेकेंडरी सेक्टर. Machineries, transport, vehicle, communication system, electrical equipments, ready-made garments or commodities or product, etc. are manufactured with the help of big industries. Other goods, chemicals, dyes, clothes, etc. ये सारी चीजें हम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में बनाते हैं. The units with manufacturing, all these things are called manufacturing sector or secondary sector. अब सर्विस सेक्टर में इज द सर्विस. यहाँ पे ना तो कुछ ग्रो हो रहा है, ना कुछ जमीन के नीचे से निकाला जा रहा है, ना कुछ बेचा जा रहा है, ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फैक्ट्री में बनाया जा रहा है, कुछ नहीं. इट इज सिंपल अ सर्विस लाइक अ टीचर, डॉक्टर, लॉयर, पुलिसमैन एंड मिलिट्री, आर्मी. तो ये सारा बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन, वाटरवेज, एयरवेज, रोडवेज, रेलवे, राइट, पोस्ट ऑफिस, ट्रेडिंग कि तुमसे कुछ मैंने होलसेल में लिया और किसी और को रिटेल शॉप में जाके बेचा विद 2% प्रॉफिट. कुछ भी लाइक एग्जांपल, मैंने होलसेल में एक फैक्ट्री में से पेंसिल उठाई और पैसे देके, और फिर उसको मैं रिटेल शॉप में जाके दे रही हूँ. तो मैंने 5 में जो एक पैकेट लिया पेंसिल का वो मैं 7 में बेच रही हूँ, और वो रिटेल शॉप वाले फिर अपनी मर्जी से 10 लगाएंगे, 20 लगाएंगे अकॉर्डिंगली. सो दैट इज व्हाट मी, आई एम द पर्सन हु बाइज from someone in wholesale and sells to the retailer with some profit margin in between I earn. तो मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं. यहाँ पे मैं कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही फैक्ट्री में. तो दो टाइप के बिजनेस होते हैं. एक है ये सेकेंडरी सेक्टर वाला, यहाँ पे जाएगा एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहाँ पे भी लोग खुद की फैक्ट्रीज होती है तो कहते हैं हमारा बिजनेस है. किसका, किस चीज का? तो कहेंगे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ बनाते हैं फैक्ट्री में. सर्विस सेक्टर में भी कई लोग कभी ऐसे कहेंगे हम वी आर बिजनेसमैन. व्हाट टाइप ऑफ बिजनेसमैन? वी आर ट्रेडर्स. मतलब कि हम होलसेल में लेते हैं, अपना खुद का काम है होलसेल में खरीदना, थोड़ा सा उस पर प्रॉफिट डाल के अर्न करके, मतलब प्रॉफिट कमा के फिर हम रिटेलर्स को अलग अलग दुकान में बेचते हैं. तो वो भी एक बिजनेस है. So the manufactured products or goods have to be reached to various businessmen, and for that we require trucks or trains. अब सर्विसेज, एक तो हुई ट्रेडिंग, लिया पैसे ऐड किए, कमाया थोड़ा प्रॉफिट, बेचा, वो एक टाइप है सर्विस. सर्विस देना है. यहाँ पे ना तो कोई प्रोडक्शन हो रहा है, ना कुछ ग्रो हो रहा है. सेकेंड इज टीचर, डॉक्टर, लॉयर्स, स्कूल, इंस्टीट्यूशंस, banking, health, insurance, telephone, that is communication, transportation, entertainment, gas, electricity. बहुत सारी चीजें, all this gas, electricity, etc. is required to maintain the relation between goods and business. मतलब मैं कुछ ग्रो कर रही हूँ एज अ फार्मर, और मुझे वो चीज फैक्ट्री तक पहुंचानी है, तो मुझे चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बहुत सारी सर्विसेज. अच्छा, जो फैक्ट्री लेके बैठे हैं वो ग्रो नहीं कर रहे, तो उनको चाहिए कि फार्मर से सारी चीजें वो शायद वो मंगवा लें अपने ट्रांसपोर्टेशन थ्रू, ट्रक थ्रू. तो उनको वो भी सर्विस पिकअप कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की, या कभी मैं भेज रही हूँ तो मैं पिकअप कर रही हूँ ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस. फिर हम अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के अलावा भी कई सर्विसेज हम पिकअप कर रहे हैं, ताकि चीज जहां से ग्रो हो रही है वहां से वो फैक्ट्री तक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए बीच में बहुत सारे लोगों की सर्विसेज हम उठाते हैं. दैट इज सर्विस सेक्टर. फिर जब बन जाता है वहां से मार्केट तक पहुंचाने के लिए, शॉप्स तक पहुंचाने के लिए वापस सर्विस सेक्टर की जरूरत होती है. तो सर्विस सेक्टर बहुत सारे लोगों को जरूरत काम में आ रहा है. And in today's world, internet, ATM booth, call center, software company have become important services. Read the table given below, think and write. Now see, just assume
जस्ट ऐसे इमेजिन करो दैट अ फार्मर डिनाइज टू सेल शुगर केन टू शुगर मिल. फार्मर ना कह रहा है, जस्ट इमेजिन, अज्यूम कि भाई शुगर केन ग्रो तो कर रहा है लेकिन कहता है मैं शुगर मिल को नहीं पहुंचाऊंगा. व्हाट विल बी द इफेक्ट? बिना शुगर के हमें आगे बढ़ना होगा लाइफ में, ठीक है ना. यू विल नॉट गेट एनीथिंग दैट शुगर इज इंक्लूडेड. गुड़ भी नहीं, क्योंकि शुगर केन ही नहीं सेल कर रहा, तो शुगर केन के जूस में से तो गुड़ बनता है, तो स्वीटनेस गायब हो जाएगी वर्ल्ड में से. व्हाट डज इट इंडिकेट? तो what does it indicate? You can write in your own way. It indicates that the person is not entering into economic activity, or he doesn't want to pick up any services. Assume that the companies decide to import cotton from other countries rather than purchasing it from our own Indian market. Then what will happen to our cotton farmers and farming? तो naturally just imagine, assume कर लो कि बहुत सारी हमारी इंडिया की कॉटन टेक्सटाइल मिल्स या जो कॉटन के कपड़े बनाती है, वो कॉटन खुद अपने इंडियन फार्मर्स के पास नहीं बाय कर रही, लेकिन फॉरेन कंट्री से बाय कर रही. तो क्या होगा? नेचुरली हमारी फार्मिंग जीरो जीरो हो जाएगी. देयर विल बी lot many problems that will start coming up in the country. Farmer buys tractor, pump set, electricity, chemical fertilizer, pesticides, etc. Just imagine, assume that the price of pump set and chemical fertilizer increases, then what will happen? Naturally, अगर ये सारी चीजों के प्राइस बढ़ जाएंगे तो फार्मर अपनी चीजें महंगे में बेच देगा हमें. अब आगे मतलब टू द बायर, और वो बायर मार्केट में जाके रिटेलर को और ज्यादा महंगे में बेचेगा, और वो रिटेलर के पास जब हम जाएंगे बाय करने तो दैट प्राइस विल बी सुपर डुपर हाई. तो दैट विल क्रिएट प्राइस राइज इन द मार्केट. वन मोर क्वेश्चन. Food is required by those working in industrial or service sector, right? Just once again assume या imagine that the transfer system goes on strike and refuses to vegetable milk etc. from the village. What will happen? Refuses to transport, मतलब यहाँ पे word missing है, to transport. अगर ट्रांसपोर्टेशन वाले ही हड़ताल पे आ जाए तो क्या होगा? तो नेचुरली वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क हम सब अपने अपने टू व्हीलर या फोर व्हीलर में जाके गांव से खरीद के लेके आना होगा. एंड दैट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, क्योंकि हम हमारे काम में इतने रहते हैं कि कौन जाएगा रोज कहीं किसी गांव तक, और वहां जाके पता चला कि हमारे पहले कई लोग पहुंच चुका है और माल खत्म हो चुका है, सामान खत्म हो चुका है, तो हम दूसरे गांव जाएंगे, वहीं पे भी वही प्रॉब्लम है. तो इट विल क्रिएट केओस एंड मारा मारी, और बहुत सारे गलत असर होगी इसकी, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, right? So you may not write all this, it's just a discussion ki what will be the effect, what does it indicate. Importance of service sector has been increasing constantly. Why discuss? चलो देखते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं, और तुम भी सोच के रखना, फिर कभी क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे. एंड दैट इज द थिंग दैट यू विल हैव टू टेल मी, रिमाइंड. विल डिस्कस समवेयर 5-10 minutes on our Zoom lecture. तो इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर हैज बीन इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, मतलब कंटिन्यूअसली. व्हाई? सर्विस सेक्टर में काफी सारी चीजें आ जाती हैं. तो जैसे जैसे एक गांव टाउन बन रहा है, टाउन सिटी बन रहा है, तो कितनी सारी सर्विसेज बढ़ रही है, कितने सारे लोग एजुकेट हो रहे हैं, तो बहुत सारे टीचर्स की जरूरत पड़ रही है, बहुत सारे स्कूल सर्विसेज की जरूरत पड़ रही है, बहुत सारे न्यू इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ रही है. एरिया बड़ा होता जा रहा है, तो हर एक एरिया में नई नई स्कूल्स एंड ट्यूशन क्लास एंड फिर पानी की सर्विस की जरूरत पड़ रही है, न्यू पाइपलाइन की सर्विस की जरूरत पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, रोड सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, बहुत 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 सारे सर्विस सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, सिटीज क्रॉप अप हो रही है, तो टाउन तक भी कई चीजें पहुंच चुकी है, तो सर्विसेज और बढ़ रही है, राइट? और लोगों को पता चल चुका है कि सर्विस सेक्टर से ही कंट्री डेवलप हो रही है, लोगों का डेवलपमेंट होगा, राइट? दिस वेरी इंटरेस्टिंग, योर मैथ्स ओवर हियर. लेट्स कैलकुलेट. How do we count the commodity and services of various sectors and also total production? Let's think. तो अलग अलग सेक्टर्स के कमोडिटीज सर्विसेज को कैसे काउंट करेंगे, एंड ऑल्सो टोटल प्रोडक्शन, हाउ डू वी काउंट? लेट्स थिंक. चलो, एक फार्मर ही सेल्स wheat at the rate of ₹15 per kg, right?
स्लैश मतलब 15 पर केजी, 1 केजी के 15 रुपए, टू अ फ्लोर मिल, चक्की को, एक चक्की मतलब जहाँ पे तुम्हारे मम्मी या पापा जाते हैं डिब्बा लेके गेहूं को आटा करवाने, टू कन्वर्ट द व्हीट और राइस इनटू फ्लोर। वो जो फ्लोर मिल है छोटी सी वो वाली नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ए ह्यूज फ्लोर मिल। जैसे बहुत सारे हैं, गाइशा बेसन, तो बेसन की ये जो ह्यूज फैक्ट्रीज हैं ऑन अ लार्ज स्केल, करोड़ों की फैक्ट्रीज वाले, तो वो है फ्लोर मिल की हम बात कर रहे हैं। तो एक फार्मर अपने टन्स एंड टन्स ऑफ केजी व्हीट ग्रो करके वो 1 केजी के 15 रुपए में वो बेच रहा है टू अ फ्लोर मिल। द व्हीट इज टर्न इनटू फ्लोर, उस गेहूं को बनाता है आटा वो मिल में, इन द मिल। द मिल सेल द फ्लोर टू अ बिस्किट मेकिंग कंपनी फॉर 20 पर केजी। अब 15 में 1 किलो खरीदा, 5 फिर फ्लोर बनाया, अब 20 में वो बेचेगा, तो 20 में उसको प्रॉफिट हुआ काफी कम, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, फिर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, फिर इनकम या सैलरी देना एम्प्लॉयज को, मेंटेनेंस का खर्चा, मशीनरी और उन सब का, तो सब कुछ मिलाते चलो उसको 5 रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा में वो बेच रहे, 5 रुपए में से 3 तो उसका खर्चा जा रहा है, राइट, ट्रांसपोर्टेशन ऑल व्हाट आई टोल्ड यू, तो 2 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है 1 केजी पे। अब ये होलसेलर का काम है, बड़ा टन्स एंड टन्स ऑफ व्हीट को वो फ्लोर बना के बेच रहा है, तो नेचुरली वहां पे प्रॉफिट वो कम लेगा। Biscuit making company mixes sugar, ghee and other things with the flour, makes 4 big packets of biscuits. अब इसी 1 केजी आटे में वो घी, शक्कर और बहुत सारे फ्लेवर्स डाल के उसके 4 बड़े पैकेट बनाता है बिस्किट का। इट इज सोल्ड इन द मार्केट फॉर ₹80, मतलब एक पैकेट के 20 रुपए, मतलब कि 1 किलो आटे में से उसने जो 4 पैकेट बनाए घी, शक्कर, फ्लेवर और कलर्स एंड ऑल डाल के, तो एक पैकेट उसने बेचा 20 रुपए में। द बिस्किट इज अ लास्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड देन इट रीचेस टू द कंज्यूमर, मतलब हम तक आते आते वो 20 रुपए पर पैकेट नहीं होता, वो बन जाएगा शायद 30 रुपए, क्योंकि अब शॉप वाला उस पर ऐड करके हमें बेचेगा, राइट। दिस इज वॉट, कि 10 रुपए की चीज फार्मर जो बेच रहा है वो हम तक आते आते 100 की हो जाती है, कलरफुल कपड़े पहना के, राइट। नाउ सी द टेबल रिलेटेड टू कप ऑफ टी एंड थिंक ओवर इट। द ओनर ऑफ द होटल बेयर्स रुपीज फॉर 1 cup of tea and earns the profit of ₹2.50, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट का वो दूध और शक्कर और सब डाल के फिर वो प्रॉफिट कमा रहा है उस कप ऑफ टी पे 2.50. What will be selling cost, right? Assume that the cost of milk increases by ₹2. समझो कि अब सेलिंग कॉस्ट मतलब कि उसको चाय का एक कप वो जब बनाता है तो 2 रुपए में टोटल खर्चा हुआ, वो बेचेगा उसको 2 में नहीं फिर 3 में बेचेगा। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल ओवर हियर। एंड मतलब कि उसमें उसने प्रॉफिट कितना किया, 1 रुपए। तो जितना भी उसको खर्चा हुआ उसमें वो 2.50 ऐड करेगा, फिर वो बेचेगा, वो उसका होगा सेलिंग कॉस्ट। Now just imagine or assume that the cost of milk increases by ₹2 per liter. अब एकदम से 1 लीटर पे 2 रुपए बढ़ गए मिल्क के, then what will be the additional cost and selling cost of the cup of tea? Naturally it will increase, and that decision the seller will take, the maker of the tea, जो बेच रहा है चाय बना के, वो सोचेगा कि मुझे इस पे 50 पैसा ज्यादा कमाना है या 2 रुपए या 1 रुपए। So this costing of that 50 पैसे and all he will decide extra how much he will take, क्योंकि दूध अब वो जो खरीद के लेके आ रहा है मार्केट से वो महंगा हो गया है, तो चाय भी वो थोड़ी बहुत तो महंगे में बेचेगा कस्टमर्स को। What will be the effect on your household budget if the price of sugar increases by ₹1 per kg? और हम 1 केजी शुगर तो लाएंगे नहीं, हम एक साथ 50 केजी लेके आते हैं, और सिर्फ शुगर एक चीज नहीं है जिसकी प्राइस बढ़ रही है मार्केट में, उसके साथ तेल, घी, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मेंटेनेंस एंड स्कूल की फीस एंड वैन की जो खर्चे हो रहे हैं, और जो
लाखों चीजों की प्राइस बढ़ रही है, छोटी छोटी 50 पैसे, 1 रुपए, 20 पैसे, 30 पैसे, ऐसे करते 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 एट द एंड वी सी व्हेन वी कैलकुलेट, तो लास्ट ईयर जो हमने खर्चा किया हमारे घर का, तो एक महीने में 50,000 का खर्चा आया था सब कुछ मिला के। तो अब इस महीने एकदम से बहुत सारी चीजों के प्राइस बढ़ गई, तो हमारा खर्चा अब होगा अगले महीने 60,000 का, राइट? तो it will have a great impact on a household budget. What will be the effect on your mother's household budget? मम्मी तो बेचारी ये थोड़ी अब तो पैसे बढ़ा दो, बाहर प्राइस बढ़ रही है, तो पापा के पास ज्यादा पैसे मांगेगी घर खर्ची के. If the price of gas cylinder increases by ₹50, अब यहाँ पे लीटर नहीं होगा, गैस सिलेंडर इंक्रीजेस बाय ₹50, कट ऑफ दिस लीटर, राइट? तो ये इफेक्ट ऑफ प्राइस राइज, दैट इज इन्फ्लेशन ऑन मार्केट, तो होगा ही, हमारी लाइफ पे भी काफी बड़ा असर हो रहा है इसका. सो what will be the effect on bus and school bus fare if the price of diesel or petrol increase by ₹2.50 liter? Who increases the price of milk, sugar, gas, diesel, etc. and why is there a need to increase the price? अब देखो कई चीजें ऐसी होती है जहां पे गवर्नमेंट प्राइस बढ़ा रही है, जैसे गैस है, डीजल है, पेट्रोल है, बहुत सारी चीजें, आयरन, सीमेंट. लेकिन जैसे मिल्क है, शुगर है, तो वहां पे मिल वाले प्राइस बढ़ाते हैं. एंड प्राइस क्यों बढ़ रही है मार्केट में? क्योंकि किसी एक ने बढ़ाई और दूसरे को, अगर से दैट आई एम अ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी एंड यू ऑलवेज बाइंग दैट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फ्रॉम मी, कि भाई गुजरात से महाराष्ट्र तुम्हारे फैक्ट्री का माल हर बार मैं ही पहुंचाती हूँ अपने ट्रक्स में, तो तुम हर बार मुझे पे करती हो एक ट्रक के 5,000, उसमें मैं सामान तुम्हारा महाराष्ट्र तक पहुंचा देती हूँ. सालों से हम ये काम कर रहे हैं, हमारी अच्छी दोस्ती है, बिजनेस रिलेशन है. अब हुआ है कि गवर्नमेंट ने डीजल के प्राइस बढ़ा दिए, तो अब मैं थोड़ी ना, जो 5,000 में मैं तुम्हें एक ट्रक का मैं प्राइस चार्ज करती थी, इस साल थोड़ी ना 5,000 लूंगी. इस साल मैं लूंगी 6,000 या 5,500, 500,000 बढ़ा दूंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ा है, राइट? गवर्नमेंट भी क्यों बढ़ाती है? बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू कैरी आउट, गवर्नमेंट के खुद के कोई बिजनेस नहीं होते, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, प्राइस बढ़ाती है कई चीजों की मार्केट में, फॉर दी पॉपुलेशन के डेवलपमेंट के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री, तो कंट्री आगे बढ़ेगी. सो फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट प्राइस बढ़ाती रहती है. अब क्योंकि डीजल की प्राइस गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, तो तुम ये कहोगे कि ना भाई, मैं तो तुम्हें पैसे दूंगी ही एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे किसी और के पास, सम न्यू पर्सन, सम न्यू ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के पास नहीं जाना है जिसको मैं पहचानती नहीं, वेयर आई विल नॉट हैव फेथ. इतना महंगा सामान मैं हर साल तुम्हारे हाथ से ट्रांसपोर्ट करवाती हूँ, तो यू विल कम टू मी ऑफ कोर्स एंड यू विल पे मी 500 or 1,000 मोर. 5,000 की जगह पे इस साल तुम 6,000 मुझे दे रही हो, और फिर आगे जाके तुम अपना वो प्रोडक्ट जो बेचोगी, दैट विल बी अगेन विद अ प्राइस राइज, क्योंकि तुमने लास्ट ईयर 2 रुपए में बेचा था, क्योंकि तुमने मुझे 5,000 ट्रांसपोर्टेशन के दिए थे, तो तुमने वो प्रोडक्ट 2 रुपए में बेचा था, वैसे वो ट्रक भर के सामान लाखों में बेचा था. इस साल वो ही 2 रुपए का प्रोडक्ट तुम 3 में बेचोगी, क्योंकि तुम लॉस थोड़ी ना करोगे, तुमने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, तो वो तुम कहीं ना कहीं कवर कर लोगे, तो तुम एक्स्ट्रा में बेचोगे. तो ये इट कीप्स ऑन रोटेटिंग, ये रोटेट होता जाएगा. वो जब मैं प्रोडक्ट खरीदने जाऊंगी, तो नेचुरली अब होगा क्या? Now now I'm not that transportation company owner. Now I'm a simple some consumer in a market, but I have my own, say, school or tuition classes or some other business. तो say I'm a lawyer. तो अब क्या होगा? ये इतने सारे, ये तो सिर्फ एक प्रोडक्ट है, ऐसे हजारों प्रोडक्ट जब हम बाय करते हैं मार्केट से, जिन सबके प्राइस 50 पैसे, 1 रुपए, 10 पैसे, 30 पैसे बढ़ चुके हैं, वो जब मैं खरीदूंगी, तो नेचुरली आई एम नॉट गोइंग टू मेक लॉस इन माई लाइफ. अब मैं एज अ लॉयर आई विल इंक्रीज माई फीस, राइट? तो ये चक्कर चलता रहता है मार्केट में. क्लियर? सो नाउ वी कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम, and that will be just see a new topic ahead, which is again going to be very much interesting, and that is the economic activities of India, which are also classified on the basis of ownership.
जैसे गवर्नमेंट ओन फैक्ट्रीज हैं, प्राइवेट लोगों की फैक्ट्रीज है, जैसे खुद तुम्हारे पापा की हो, फिर मिक्स एंटरप्राइजेज यूनिट्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा. दैट वी विल डू नेक्स्ट टाइम, राइट? सो थैंक यू एंड रिवाइज एंड मैसेज भी रीड कर लेना जो मैंने भेजा है, राइट, अबाउट द टेस्ट ऑन सैटरडे. थैंक यू.